اور نبوت کا منصب سرفراز کیا، آج اسی امت کا حال یہ ہے کہ تعلیمی اعتبار سے پوری دنیا میں سب سے پچھڑی ہوئی امت مانی جاتی ہے۔ آج ہم دیکھیں تو جہاں کہیں مسلمانوں کا جو معیار ہے مسلسل گھٹتا جا رہا ہے، جیلوں کے اندر دیکھو تو مسلمانوں کے بچے سب سے زیادہ ٹھوسے جا رہے ہیں۔ آپ کوئی بھی رپورٹ اٹھا کر دیکھ لیجئے سروے کے اندر میں کہ جرائم کے اندر جو ہے مسلمان سب سے آگے آپ کو نظر آئے گا، تعلیمی اعتبار سے پچھڑے پن میں مسلمان آپ کو نظر آئے گا، مزدوری کرنے والے میں سب سے زیادہ تعداد مسلمانوں کی، راستے پر ٹھیلا لگانے والوں کی تعداد میں سب سے زیادہ تعداد مسلمانوں کی۔ غرض کہ کون سا ایسا نچلے درجے کا کام نہیں رہا ہے جہاں پر مسلمان بڑی تعداد میں نہیں ہے۔ اجتماعی طور پر یہ ایک اجتماعی مسئلہ ہے، اور اجتماعی مسئلے کے لیے الحمدللہ جس سرزمین پر میں آج یہاں پر دو باتیں کہنے کی جرت کر رہا ہوں، اور آپ جیسے اہل علم حضرات کے سامنے، جس میں ماشاءاللہ فعال اور مدارس کے ذمہ داران علماء ہے، دنیاوی تعلیم اور عصری تعلیم کو لے کر چلنے والے اور سماجی جذبہ رکھنے والے ہمارے بہت سارے ساتھی ہیں، نوجوان جیسے ہمارے شفیع پٹھان صاحب، اسلم باغبان صاحب، مولانا منصور صاحب، حافظ شعیب صاحب، ہمارے یوسف باغبان صاحب، ہمارے یہ ایک فعال اور ایک متحرک طبقہ ہے۔ اجتماعی مسئلے کی بات چل رہی ہے تو اجتماعی صورتحال سے اس کا حل نکالنا پڑے گا۔ اگر یہ ایک شخص رکشہ چلانے والا شخص ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں میرے بچے کو ڈاکٹر نہیں بنا سکتا، میں دو باتیں آپ کو پیچھے کی طرف لے کے جاؤں گا۔ گزشتہ ہفتے مومن پورے میں مومن پورہ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے نام سے شکشن حق منچ نے ایک باڈی کی بنیاد رکھی، جس میں ہر مسلک کے اور ہر سماج سے تعلق رکھنے والے ایک ذمہ دار شخص کو جو ہے مومن پورہ کے اندر ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے تحت میں ان کو جوڑا گیا، جس میں علماء ہے، جس میں سبزی بیچنے والے افراد ہیں۔ متین بھائی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک لانگ ویژن دیا ہے، ایک دور اندیشی دی ہے۔ اس پروگرام کا اگر آپ تھوڑا سا یوٹیوب کے اوپر اور واٹس ایپ کے اوپر آپ دیکھ لیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 16 ایسے لوگوں کو اور ایسے ماں باپ کو وہاں پر ان کی عزت افزائی کی گئی، جس میں سے کوئی بھی بچہ اور کوئی بھی ماں باپ جو ہے مڈل کلاس کے اوپر نہیں تھا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں مثال کے طور پر، ایک عورت ہے جو مچھی گلی میں وہاں کا جو سبزی مارکیٹ ہے وہاں پہ جو ہے مٹکی بیچتی ہے، مٹکی۔ اس مٹکی بیچنے والی عورت نے مٹکی بیچ کر اپنے بچے کو الحمدللہ ڈاکٹر بنایا، اور وہ بچی کو انہوں نے لا کے متین بھائی کے ہاتھ میں دے دیا، اور اس بندے نے جو ہے اس بچی کے اوپر محنت کر کے جو ہے اس کو ڈاکٹر بنا دیا۔ یقین کیجیے آپ، جس وقت اس کے ماں باپ کی عزت افزائی کی جا رہی تھی، اس کے آنکھوں میں زاروں قطار جو اپنے آنکھوں سے رو رہی تھی۔ ایک رکشہ چلانے والا بچہ، ہمارے پٹھان صاحب اس بات کے گواہ ہے، اس وقت کا جو منظر تھا کہ 16 ایسے ماں باپ جن میں سے کوئی بھی شخص ایسا نہیں تھا کہ جو کسی ایک آج 1 BH کے فلیٹ کا مالک بھی ہوگا متین بھائی، ایک بھی بچہ، ایک بھی ماں باپ جو ہے 1 BH کے فلیٹ کے مالک نہیں۔ سادے سودے جھگی جھوپڑیوں میں رہنے والے ماں باپ نے اپنے بچوں کو کسی نے فارماسسٹ بنایا، کسی نے BMS ڈاکٹر بنایا، اور اس طرح کے نہ جانے کتنی مثالیں جو اعلیٰ تعلیم کے طور پہ جو انہوں نے کی۔ لیکن یہ نتیجے اس وقت میں پیدا ہوئے جب انہوں نے اس بات کی فکر کی کہ نہیں، ہم کو صحیح رہنمائی ملنی چاہیے۔ ان بچوں نے، ان ماں باپ نے اپنے بچوں کو اس شخص کے حوالے کیا۔ 8ویں سے 9ویں سے 10ویں سے ایک مسلسل محنت تھی۔ کسی شاعر نے خوب کہا ہے کہ ایک پتھر کی بھی تقدیر سنور سکتی ہے، ایک پتھر کی بھی تقدیر سنور سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ سلیقے سے تراشا جائے۔ اگر پتھر ہو اور سنگ تراش ویسا ہو تو پھر بنانے والے جو ہے پتھر سے تاج محل بھی بنایا کرتے ہیں۔ تو یہ سنگ تراش ہے، یہ آپ کے سامنے مثال ہے۔ پونا شہر میں ایسی سینکڑوں مثالیں ہیں۔ الحمدللہ ہمارے جیسے کئی ساتھی لوگوں نے جو ہے ان کو مسلسل متین بھائی کو یہ کوشش کی کہ آپ جو ہے آپ کو آپ کے کام کا دائرہ بڑھانا پڑے گا، کیونکہ جس طریقے سے ہندوستان کے اندر اور ملک بھارت کے اندر جو حالات مسلمانوں کے اوپر پڑ رہے ہیں، آج پونا شہر کو ہم لوگ ودیا کا ماہر گھر کہتے ہیں، آکسفورڈ آف دا ایسٹ کہتے ہیں، لیکن مسلمانوں کا تعلیمی حال کیا ہے؟ اس کا حل مجھ کو اور آپ کو ذمہ داروں کو نکالنا پڑے گا، اور ذمہ دار لوگ اس بات کی فکر اگر کریں گے کہ کوئی بھی بچہ تعلیم سے ڈراپ آؤٹ نہ ہو۔ متین بھائی کی ایک کوشش ہے کہ 8ویں کے بعد سے جو بچہ ہے وہ کالج اسکول چھوڑ دیتا ہے۔ کالج تو بہت دور کی بات ہے، 7ویں تک بچہ پرائمری میں جاتا ہے، لیکن 8ویں کے بعد بچہ پوری طریقے سے ڈراپ آؤٹ کر دیتا ہے حالات کی بنا پر۔ اس لیے آپ بورڈ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ مفت کوچنگ کلاسز،
मामूली बात नहीं है मुफ्त कोचिंग क्लासेस, एक बड़ा निजाम है जिसके तहत में यह आदमी एक फिक्रों में लगा हुआ है। और इसके साथ में हमारे चांद भाई और आफरीन जैसे कई अल्हम्दुलिल्लाह मुखलिस लोगों की एक टीम बनी हुई है जो इस बात की कोशिश कर रही है कि मुसलमानों का कोई बच्चा जो है तालीम से महरूम ना रहे। हमारे पास में मोमिनपुरा में ऐसी ऐसी मिसालें हमारे सामने आई कि खुद हम भी उससे वाकिफ नहीं थे कि रिक्शा ड्राइवर का बच्चा जो डॉक्टर बन गया। एक बच्ची जो है बंबई से आई थी, एक गरीब घर से ताल्लुक रखती थी, उस बच्ची ने अल्हम्दुलिल्लाह 500 मार्क्स नीट के अंदर 500 मार्क्स क्रैक किए इस आदमी की रहनुमाई की गाइडेंस में। सिर्फ कुछ माशी पैसों की हालत की वजह से वो MBBS नहीं कर पाई, लेकिन वो BOMS में अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे नंबरों से कामयाब होकर आज डॉक्टर बनी हुई। किसी शायर ने खूब कहा था कि कांटों में जो खिलता है शोलों में जो फूल, कांटों में जो खिलता है शोलों में जो पलता है वही फूल गुलशन की तारीख बदलता है। ये कौम के वो बच्चे जिन पे अगर आप मैं और आप थोड़ी सी तवज्जो देंगे तो यकीन जानिए कि आने वाले 2 और 5 साल में हम पूना शहर का नक्शा बदल देंगे इंशाअल्लाह। मेरी आपसे दरखास्त है कि शिक्षण हक मंच जो है एक मिशन को लेकर चला है पूरे शहर के अंदर में, पूरे शहर के अंदर में। और आज जिस जगह पर मैं अपनी बात कहने की जरूरत कर रहा हूं, ये वो इलाका है जिसे आज पूरा पूना शहर जो है, आज पूरा पूना जिला जो है उम्मीद की नजरों से देख रहा है कि कोंडवा में क्या हालात हो रहे हैं, कोंडवा वाले क्या कर रहे हैं। कोंडवा में जो कुछ होता है आप यकीन जानिए कि उसके असरात पूरे पूना शहर के मुसलमानों पर होते हैं। लेकिन आज कोंडवा का हाल क्या है, नशे की लानत में जो कोंडवा का हाल है, अल्लाह माफ करे कि शायद ही किसी और इलाके में। हमारे बच्चों पर हमको खास ध्यान देने की जरूरत है। हम लोगों ने थोड़ा सा प्रोग्राम की नोयत बता दूं कि शिक्षण हक मंच ने इस बात की कोशिश की है कि कोंडवा के अंदर एक सेंटर कायम किया जाए और उस सेंटर के अंदर जो है आप अपनी जात से दोनों एतबार से, मुझे यहाँ नहीं कहना चाहिए था लेकिन मुझे कहना जरूरी है कि एक मिशन को कामयाब करने के लिए जिस तरीके से अफराद की जरूरत होती है उसी तरीके से माली ताउन की भी जरूरत होती है। मतीन भाई आज से काम नहीं कर रहे, एक टेस्टेड है, एक अप्लाइड है और एक लंबा तजुर्बा है। और उसके बाद में कई सारी मिसालें भी हैं कि इस आदमी ने तालीम के मैदान में आकर कितने धरने आंदोलन किए। आज से 15 साल पहले तकरीबन मुझे याद आता है कि जब उन्होंने पहली मर्तबा रोजरी स्कूल के खिलाफ धरना आंदोलन किया था, उसके बाद से मुसलसल अल्लाह ने उनको वहां से उनके जहनों को जोड़ा, उनके जहनों को बदल दिया कि नहीं अब तालीमी मैदान में जो है उम्मत मुस्लिमा में काम करना है। आप पर्ची देख लेंगे तो आपको पता चलेगा कि गवर्नमेंट से इस आदमी ने कितने केसेस लड़े, महानगर पालिका को कितने निवेदन दिए हैं कि जो पैसा माइनॉरिटीज के नाम पर, मुसलमानों के नाम पर आता है, एजुकेशन के नाम पर, वो अभी तक मुसलमानों के हाथ में नहीं पहुंचता। हमारे फिरोज मुल्ला साहब ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने भी तालीम के एतबार से बच्चों के लिए लड़ाई लड़ी है और ऐसे हमारे कई लोग हैं जिन्होंने तालीम की फिक्रों को लेकर लड़ाई लड़ी है। हमारे असलम बागवान साहब यहाँ पे बैठे हुए मुसलसल जो है लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। लेकिन मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये लड़ाई मिलकर लड़ने की लड़ाई है और इस लड़ाई के अंदर हमको वाहवाही की जरूरत नहीं है, बैनरबाजी की जरूरत नहीं है। एक लंबी सोच और फिक्र के साथ में हमको बच्चों की तालीम के लिए आगे आना पड़ेगा। मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि आप शिक्षण हक मंच से जुड़िए और शिक्षण हक मंच के जरिए से मतीन मुजावर साहब के हाथों को आप मजबूत कीजिए। यकीन जानिए मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर तालीमी मैदान में पूना शहर में कोई मुस्लिम बंदा अगर कोई काम कर रहा है समाज और कौम मिल्लत के लिए तो ये मतीन मुजावर है। अगर आप यकीन करके उनके हाथों को मजबूत करेंगे तो आने वाले 2 और 5 साल में इंशाल्लाह आपको रिजल्ट नजर आएगा। 16 बच्चे जो मोमिनपुरे के अंदर उनके माँ बाप को दिए, कोई भी माँ बाप ऐसे नहीं थे जो ज़ारो कतार रोते हुए जो है वहां से नहीं गए थे। 8वीं 9वीं और 10वीं इन तीनों क्लासेस के अंदर जो है मुफ्त कोचिंग क्लासेस का जो है शिक्षण हक मंच की तरफ से इंतजाम किया जा रहा है। आपके अतराफ में, आपके नॉलेज में जो बच्चे इस काबिल आपको नजर आते हैं कि अगर इनको सही रहनुमाई दी गई तो ये बच्चे डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं और आला तालीम याफ्ता बन सकते हैं। तो आप जो है उन बच्चों को इनके सेंटर में भेजने की कोशिश करें और अल्लाह ताला ने आपको माली एतबार से भी नवाजा है। तो मैं इस बात की मतीन भाई ने इजाजत नहीं दी थी मुझे, मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ। ये आदमी पैसों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं करता है, हम इस बात के गवाह हैं और उनकी पूरे टीम मेंबर इस बात की गवाह है। लेकिन हम बार बार मतीन भाई से ये कहते आए हैं कि इस मिशन को और इस तहरीक को अगर आपको कामयाब करना है तो माली एतबार से भी आपको सपोर्ट मांगना पड़ेगा लोगों से।
हमने देखा यूट्यूब के ऊपर में कि एक आदमी जो है बेंगलोर से और वहाँ से वली रहमानी एक आवाज़ लगाता है कि कौम तालीम के मिल्लत के नाम पर तो एक दिन में 7 करोड़ और 10 करोड़ रुपए जमा कर लेता है। एक फिक्रे है। आज जो लोग तालीम की अहमियत को समझ रहे हैं वो पूरी दुनिया में हिंदुस्तान के अंदर फिक्रे ले रहे हैं कि नहीं, आज अगर हम मुसलमान कहीं परेशान हैं तो सिर्फ तालीम के ना होने की वजह से। अगर आप सही दिल से और संजीदगी से कोंडवा के बच्चों के मुस्तकबिल को लेकर आप अगर मशवरा करेंगे और सोचेंगे तो यकीन जानिए 2-5 साल में हम इंशाल्लाह एक कामयाब तरीके से आगे बढ़ेंगे। और मतीन भाई के मंसूबों में से एक मंसूबा ये है कि आने वाले कुछ सालों में जो एक बड़ी ज़मीन खरीद कर जो है इंशाल्लाह एक शानदार यूनिवर्सिटी वहाँ पर कायम की जाए और उसके अंदर आला से आला तालीम जो है बच्चों के लिए जो है मुफ्त के अंदर इंशाल्लाह प्रोवाइड की जाए। ऐसा उनका एक ख्वाब है और अगर अल्लाह ताला ने आपको और हमको उनके साथ में जुड़ने का मौका दिया तो ये इंशाल्लाह वो ख्वाब जो है बहुत जल्द शर्मिंदा ताबीर होगा। आखिर में 2 बातें कह के आपसे रुखसत करूंगा कि शिक्षण हक मंच जो है कोंडवा में आज आपके सामने इसलिए आए हैं कि कोंडवा के बच्चों के मुस्तकबिल के लिए आप तमाम जिम्मेदार, आप में से बैठा हुआ हर शख्स जो है जिम्मेदार है। कोशिश इस बात की, इस प्रोग्राम को मतीन भाई का एजेंडा शुरू से ये कल आदमी जो है मक्का मस्जिद के सामने कल सुबह से शाम तक बैठा हुआ था एडमिशन का टेबल लगाए हुए। जो लोग यहाँ पे मोमिनपुरा के बैठे हुए आप पूछ लो कि कल जुमा की नमाज, परसों के दिन जुमा की नमाज में से लेकर मगरिब की नमाज तक जो है ये वाला बोर्ड लगा के ये आदमी जो है बैठा हुआ था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है इनसे जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है तालीम के अंदर आगे बढ़े। मुफ्त कोचिंग क्लासेस चलाना कोई मामूली बात नहीं है अजीज दोस्तों, एक मुजाहिदे का काम है, कुर्बानी का काम है। आप जो है मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप उनके हाथों को मजबूत करें। शिक्षण हक मंच के ताल्लुक से आपसे जो बन पड़ सकता है आप ताउन करें। बच्चों के जरिए से ज़्यादा ताउन तो यह है कि आप बच्चों को उनसे जोड़ने की कोशिश करें। अल्लाह ताला मुझे आपको कहने सुनने से अमल के तो